त्वानहं दुषिता क्रूरान् संसारेषु नराधमा क्षिपामि अजश्रमशुभम् आसुरेषु एव योनिषु. Those who are envious and mischievous, who are the lowest among men, are cast by me into the ocean of material existence, into various demonic species of life. So Prabhupada spends time in the shloka explaining something. What is that? Will. क्या हिंदी में ट्रांसलेशन था विल का? विल. हाँ. Anyway, the point was that there is something called supreme will and something called minute will. Minute will, or we are having some small desire. Will is nothing but a desire, but it is fulfilled only by the supreme will. समझ आ गया? Just like, how to understand this? What is the biggest thing we can see? The sky. आकाश सबसे बड़ा चीज हमको देखता है, और इस आकाश में हमारी सब हवा उसके अंदर ही है. तो हमारी इंडिविजुअल जो विल है वो सुप्रीम विल के अंदर है. Symbolically to understand, all of us, different people are desiring so many things, but everything is inside the supreme will of Krishna. ठीक है, ये समझने में जिंदगी लग जाती है. People cannot understand the presence of the supreme will. Actually, great devotees, that is their prerogative. They're always looking for indication what Krishna wants. They have a desire, but they're looking indication. But their desires are also pure devotees. But then what does Krishna want? How it wants to be fulfilled? They're looking from an indication from the Supreme Lord. Like Prabhupada says, when his 3 volumes were over of first canto, he felt it's a time now to go to America. उनको भगवान का indication लगा, अब चलो. They're always looking for some indication. कुछ काम करना है, कुछ एक इंडिकेशन, हाँ अब शुरू करो. They're always looking from some indication, because they know the supreme will is final. And इसमें एक एग्जाम्पल दिया है वेरी नाइस इन तात्पर्य में. क्या एग्जाम्पल दिया है? कुछ लोग मृत्यु के पश्चात नरक जाते हैं, कुछ लोग वैकुंठ जाते हैं. दैट इज सुप्रीम विल. एंड यू कैन नॉट डिबेट एंड आर्ग्यू. अजामिल पूरे जिंदगी पाप किया पाप किया पाप किया पाप किया, और जोर का एक बारी नारायण बोला कुछ बारी, और उसको भगवान ने उसका अरेंजमेंट वैकुंठ भेज दिया, माफ़ कर दिया. इट इज़ हिज डिसीजन. और कंपैरिजन, दक्षा पुण्य कर रहा था, सब अच्छा कर रहा था, वो शिव जी से भिड़ गया, उसको गर्दन कट के बकरा बन गया.
So you can say why God has done like this. You cannot argue. That is supreme. True, Krishna is not dogmatic. But sometimes we may not be able to understand. कभी समझ नहीं आता. पड़ोसी है, सेठ बन गया, मैं गरीब ही रह गया. मैंने बिजनेस शुरू किया, उसका बिजनेस जोर से चला. You can see so many times, and we cannot understand why God has, if God is there, why He has decided like that. You cannot argue. Why? See, you may understand or not understand. You cannot argue. Supreme will of Krishna. कह आप बहस नहीं कर सकते भगवान ऐसा क्यों किया, आपको कोई हक नहीं है उसका. But Krishna is perfect. Krishna is always perfect. And then another point is that Maya adhyakshena prakriti suyatesa characharam. This material energy is also moving by the Krishna's will. It is totally under Krishna's control. All the planets are moving, wind is moving, everything is moving by the Krishna's will. So if we can understand, and Krishna's, at the background of Krishna's will is Krishna's love. There was one example somebody gave, no? One man was there. So big cyclone came. He was very peaceful. And his wife was running up, down, here, there. She was genuine. एक कहता है कि बहुत बड़ा तूफान आया, सुना होगा आपने एग्जाम्पल, और आदमी बड़ा शांत बैठा था. और बीवी, अरे घर टूट गया, ये सब गया, सब बह जाएगा, कुछ करो. जंगल में थे, क्या कर सकते हैं. शांत बैठा था. तो बीवी तो पागल हो गई थी, ये घर उड़ गया आज, ये वो चला रही थी. तूफान हो गया, चला गया, और वो अभी भी शांत बैठा था. तो बोली ये बताओ तुम इतने शांत कैसे बैठे थे, तुम्हें डर क्यों नहीं लगा. तो बोला चाकू लो. चाकू, ये हर्ड दिस एग्जाम. वो चाकू लेके आई, तो उसने चाकू को उसके गले के आगे रखा. तो उसके बाद बोला आप डर रही हो. नहीं. क्यों, चाकू है तुम्हारे गर्दन के आगे. नहीं, चाकू के पीछे मेरा हस्बैंड है ना. तो सेम वे, समझ गए, तूफान के पीछे मेरा भगवान कृष्ण है, मेरे को डर नहीं लगता. ये आसान नहीं है. करेक्ट दर्शन चाहिए होता है कि हर चीज सुप्रीम विल के कंट्रोल है. जैसे प्रहलाद महाराज को कोई भय नहीं हुआ, एक के बाद एक अटेम्प्ट, बिल्कुल भय नहीं हुआ. तो जितना आदमी को दर्शन होता है उतना वो शांत होता चला जाता है, क्योंकि उसको समझ आ जाता है. जो बड़े बड़े संत लोग होते हैं, मृत्यु भी आ जाती है, बहुत शांत रहते हैं. करेक्ट, क्योंकि उनको दर्शन है भी. हम लोग छोटी छोटी चीज़ें बहुत विचलित हो जाते हैं, बहुत भयभीत, बहुत ही बिल्कुल सारा रजोगुण तमोगुण आ जाता है, हमारा छोटा सिचुएशन डिस्टर्ब हो जाए. बट जो महान भक्त होते हैं वो बहुत शांत हो जाते हैं. ठीक है, ठीक है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. और उसके लिए फेमस श्लोक क्या क्या है. तत्ते सुशिक्षमानः मुञ्जान एवात्म कृतं विपाकम. देन हृदवाग वपुपि विददा नमस्ते जीवेत स्वमुक्ति पदेत दाय भाग. बहुत फेमस श्लोक है, याद कर लेना चाहिए. कभी कभी जिंदगी में अवसर आएगा, ये श्लोक बार बार बोलना पड़ेगा. हम याद है कुछ साल पहले हर दिन उसी पे क्लास लेते थे, कभी बताएंगे क्यों. तो तत्ते अनुकंपान मीन्स जो भी सिचुएशन जिंदगी में आती है, भयानक सिचुएशन भी आती है, उसको भगवान का ही वो विल मांगता है. वो आदमी वैकुंठ जाना, उसके लिए टिकट रेडी है उसका. दाया भाग, जैसे बच्चे को अपना पिताजी का, पहले बच्चे को मिलता था ना, बेटे को मिलता था पिताजी का जो प्रॉपर्टी है, उसका राइट होता था. तो सिमिलरली वैकुंठ था. हाँ, दाया भाग बोलते हैं उसको. किस में, बंगाली में दाया भाग बोलते हैं. ठीक है, संस्कृत में दाया भाग. तो सेम वे जो भगवान का कोई भी स्थिति को भगवान का कृपा मानता है, उनका विल, और विल उनका भगवान का हमेशा कृपा ही होता है. भगवान को किसी से द्वेष नहीं है. सो जब कोई भी स्थिति को भगवान का कृपा मानता है, उसका वैकुंठ जाना दाया भाग बन जाता है. ये बहुत सुंदर श्लोक है, आसान नहीं है. हृदवाग वपुपि, किसी भी स्थिति में अपने दिल से, हृदय मतलब दिल, वाक मतलब वचन, वपु मीन्स बॉडी, बॉडी, हार्ट, बॉडी एंड वर्ड्स से भगवान की सेवा करता रहता है. और किसी भी स्थिति को वो दुखी नहीं होता. यह स्थिति ने भगवान की इच्छा से, यह स्थिति मेरे लिए, भगवान ने यह स्थिति प्रस्तुत करी है मेरे सामने कृपा से,
उसको भगवान का ही एक आदेश मान के खुश रहता है. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सुप्रीम विल, माइन्यूट विल. नाउ भगवद गीता में इट इज एक्सप्लेन दैट देयर इज मेटल एनर्जी एंड स्पिरिचुअल एनर्जी. क्या है मेटल एनर्जी? भूमि आपो अनलो वायु खम मनो बुद्धि एवच अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा. तो सब कुछ इसके अंदर आ गया. बेसिकली माया का प्रभाव भी अहंकार इसके अंदर ही आता है. तो हम इस दुनिया में फंसे हुए हैं इन 8 एनर्जीज के कारण. अग्रे शरीर के कारण, शरीर के ऊपर अहंकार मनोबुद्धि, इससे और अहंकार मनोबुद्धि को माया प्रभाव कर लेती है. शरीर में भी हम फंसे हुए हैं. तो बेसिकली हम फंसे हुए हैं. और इसके ऊपर वर्ड द नेक्स्ट श्लोक का अपरस. हाँ, अपरते तस्तु अन्याम प्रकृति विद्धि में पराम जीवभूत महाभावो ययेदम धारिते जगत. तो इसके अलावा एक सुपीरियर एनर्जी है. अपरा मीन्स ये इंफीरियर के अलावा. अपरे इतस्तु अन्याम प्रकृति विद्धि में पराम, एक पराम है, एक सुपीरियर एनर्जी है इस इंफीरियर के. तो हम तो सुपीरियर एनर्जी हो गए, तो हमको इंफीरियर एनर्जी कैसे पकड़ ली? इस प्रश्न का क्या हल है? ये तो 8 जो बताई थी पहले, ये तो इंफीरियर एनर्जीज थी. मैं तो सुपीरियर एनर्जी हूं. सुपीरियर एनर्जी को इंफीरियर एनर्जी ने कैसे पकड़ लिया? बाय बिकॉज प्रॉपर सेज बिकॉज ऑफ विल ऑफ कृष्णा. जैसे एग्जाम्पल क्या समझ सकते हैं हम? श्री राधा गोविंद की क्या एग्जाम्पल समझ सकते हैं? जैसे कोई हथकड़ी लगा दे आपको, उसकी इच्छा से आप फंस गए हो. वैसे कोई लोहा पड़ा, वो आपको नहीं पकड़ सकता, आप उससे ज़्यादा चालाक हो. लेकिन लोहा यूज करते आपको रस्सी लेके बांध सकता है कोई. करेक्ट? तो भगवान की इच्छा के अनुसार माया ने आपको बांध दिया. वैसे एक्चुअली आप ये अष्टधा से आप ऊपर हो, लेकिन भगवान की इच्छा के अनुसार ये 8 से बंधे हुए हो. करेक्ट? इस शरीर के अंदर बंधे हुए हो. मैं अब परा कैसे हो गया? मैं तो परा हूं, तो मैं शरीर से कैसे बंध गया? बाय विल ऑफ कृष्णा आप इस शरीर के अंदर बंध गए हो. आप इस मन के अंदर बंध गए हो. क्यों? Because of Krishna's will. ठीक है? So therefore we have to accept Krishna's will. Prabhupada says individual consciousness should become subordinate to the supreme consciousness. हम बहुत छोटे जीव हैं and we need protection. Prabhupada says therefore that Krishna, 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 Raksha Mam. And then Pai Mam, Raksha Mam, Pai Mam. पूरा श्लोक क्या है? हाँ, कृष्णा केशव, हाँ, राम राघव राम राघव रक्षा माम. हाँ, पाई माम रक्षा माम, पाई माम रक्षा माम. मेन चीज़ क्या है? कृष्णा मेरे को मेरा पोषण करो, मेरी सुरक्षा करो. 2 चीज़ भगवान आपको दे रहे हैं दुनिया में, है ना? हम भी इस दुनिया में भ्रमण कर रहे हैं. चैतन्य महाप्रभु तो पैदल चल रहे थे, गांव से गांव ये गाते रहते थे. ठीक है? तो इसमें 2 चीज़ हम भगवान से चाहते हैं. क्या? भगवान हमारे को मेंटेन कर रहे हैं और हमारी सुरक्षा रख रहे हैं. तो उनका सुप्रीम विल है, हम इंडिविजुअल स्मॉल विल. ये समझना चाहिए कि आई एम मेंटेन्ड बाय कृष्णा. प्रॉपर से वी शुड बिकम डिपेंडेंट ऑन द सुप्रीम विल ऑफ कृष्णा. नाउ टुडे ऐसा नहीं है. वी हैव इंडिविजुअल विल एंड इट इज नॉट अलाइंड टू द सुप्रीम विल. सो जस्ट लाइक अ फिंगर शुड गेट अलाइंड टू द डिजायर ऑफ द बॉडी, so similarly हम भी भगवान के विल के we should come under. Then our life becomes very joyful. ठीक है? Just like the devotees are always waiting. कहते हैं ना, तरह तरह के भक्त होते हैं. Without even an indication, they see something Krishna wants, they run and give. Correct? There is a big analysis of that. That is a separate issue. But the point is that we should be under the supreme will. Will का there's a statement. I think legal में आता है ना will. Somebody before he dies, he writes a will. Correct? So in that way, the life should go into understanding the will of Krishna. Actually, if we ignore the will of Krishna, that is how people are living in this world today. If you look at this world, nobody is bothered what is the will of Krishna. Okay? And we should all understand the will of Krishna. And what is the will of Krishna today? Prithvi che yathva che nagaradi gram sarvatra prachar hoy mora naam. Correct? That is the will of Krishna. How do you speak it better?
बंगाली में कैसे बोलते हैं? ठीक है, करेक्ट है. तो दिस इज द विल ऑफ कृष्णा. Chaitanya Mahaprabhu is not different from Krishna. This is the will of Krishna. So we become subordinate to this will of Krishna. Okay? And we accept. Krishna says, don't do this, I don't do that. Because that is the will of Krishna. Prabhupada says, आप सामान्य जो सोसाइटी के लॉज होते हैं तोड़ सकते हो. ये जो कंट्री के लॉ होते हैं बहुत लोग तोड़ के छुप के बच भी लेते हो और कुछ नहीं होता. लेकिन भगवान के नियम तोड़ोगे तो नरक जाओगे सीधा. समझ रहे? आप थोड़ा भी भगवान का नियम छू लो, बहुत क्या होता है ना, भगवान को ग्रांटेड मानते हैं. तो बहुत बारी मैंने एग्जांपल दिया है. जैसे आपके मंदिर में कोई गेस्ट आए और हम सब ने अच्छा प्रसाद बनाया, उसके प्रसाद खिलाते हैं. उसके क्या पूछते हैं? आपको अच्छा लगा प्रसाद? पूछते नहीं पूछते? कोई सन्यासी आया, कोई भी गेस्ट आया और भगवान को हाँ खुश होंगे. अरे ये क्या सोच लिया तुमने खुश होंगे? भक्त कभी ऐसा नहीं सोचता. हमेशा डरा भगवान खुश है क्या, कुछ हमसे कोई गलती तो नहीं हो गई. हमेशा रहता नहीं रहता. क्या पूछते हो? प्रभु जी कुछ अपराध हो गए माफ़ कर देना, कुछ हमसे गलती हो गई. पूछते हैं ना भगवान को. हाँ खुश होंगे, वो तो खुश होंगे हमेशा. बहुत कृपालु है, खुश रहते हैं. नहीं, ये भक्त का मूड नहीं. भक्त का मूड है कि हमसे कुछ गलती तो नहीं होगी, भगवान आपसे कुछ हमसे अपराध हो गया हो. हर दिन लगता है कि भगवान हमसे गुस्सा, कभी कभी होता है ना जिसको आप आदर करते हो, प्रभु जी हमसे गुस्से तो नहीं हो कुछ. हम डर डर के बोलते हैं ना, हमसे कुछ ऐसा हो गया लगता है अब हमसे गुस्सा है. करेक्ट? सेम वे कृष्णा थोड़ा भी भगवान का नियम तोड़ दो, भयभीत हो जाना चाहिए. अरे रे रे हमसे क्या हो गया. बिकॉज नॉर्मल सोसाइटी में कुछ आप तोड़ोगे बच भी सकते हो, चलता है. लोग बहुत बड़े बड़े चोरी करके बच जाते हैं. उसको बोलते हैं लीगल क्राइम्स नाउडेज. लीगल क्राइम्स इस तरह से ऐसे क्राइम करते हैं कि कोई पकड़ नहीं सकता उनको. बहुत लोग हैं अभी बड़े बड़े करप्शन के वो हुए थे. आप प्रूफ निकालो. जैसे आर्म्स का डीलिंग हुआ था, इतना हजारों करोड़ चोरी हुआ है, प्रूफ नहीं है किसी के पास, हो ही नहीं सकता प्रूफ. पूरा ब्लैक में किया है, कोई प्रूफ कहीं पे है ही नहीं. आप उनको अरेस्ट नहीं कर सकते. सर्कमस्टेंशियली आई नो उन्होंने किया, होता है ना कभी कभी. बहुत चीज़ें सबको पता है उसने किया, लेकिन कोई एविडेंस नहीं था. कभी कभी मर्डर होते हैं पब्लिक में, कोई विटनेस आने के लिए तैयार नहीं होता. आजकल विटनेस कोई नहीं देता, वो आदमी जेल, लेकिन सबको मालूम है उसने किया, लेकिन आप उसको पकड़ नहीं सकते. करेक्ट? सो द गवर्नमेंट इज ऑल maybe limited by so many things. Krishna is not limited. Krishna ko sab malum hai. So if you touch Krishna's laws, because sometimes the state laws may not match Krishna's laws. Krishna's laws are Krishna's will. अगर उसको छुओगे तो बिल्कुल नष्ट हो जाएंगे. क्या बोला है श्लोका में? Krishna's will. ऐसे ये दानवी लोग मैं नरक में फेंक दूंगा, लिखा है ना कृष्णा ने. So we think that Krishna is always happy. ऐसा तो नहीं है. कृष्णा क्या बोल रहे थे? Those who are envious and mischievous, who are the lowest among men, are cast by me into the ocean of material existence to various demonic species of life. मतलब ऐसे दानव स्थिति में, जैसे जानवर की स्थिति, कीड़े मकोड़ों की स्थिति, जहाँ इंद्रिय भोगी करो तुम, अब बस हो गया तुम्हारा. So Krishna can become upset, and Krishna is saying so. And we saw what are the demonic qualities. One of the main demonic quality, they are atheist. जो नास्तिक लोग होते हैं, भगवान उनको राक्षस मानते हैं, उनको कोई इज्जत नहीं है उनका. करेक्ट? और तो वो कुछ लोग बोलते हैं नहीं नास्तिक है लेकिन बहुत अच्छा आदमी है. ये असंभव नहीं है. कैसे? अगर मैं बैंक से चोरी करके हम लोग पैसे ले आए और उसके बाद बोले मॉरली बांट लो, अब मॉरलिटी नहीं बची. चोरी के पैसे में मॉरलिटी नहीं होती. उसको बोलते हैं इंग्लिश में डेविल साइट स्क्रिप्चर. करेक्ट? तो सेम वे अगर भगवान को मना कर दिया उसके बाद आदमी कोई मॉरलिटी बचती नहीं है. ठीक है? सो he loses all divine qualities. So we should take indication from here and do not take Krishna for granted, accept will of Krishna. And what is the will of Krishna? Final will of Krishna? Sarvadharman parityajya mam ekam sharanam vraja. What is the final will of Krishna? Take Krishna's shelter. Krishna is ordering that. Prabhupada says Krishna can demand surrender. क्यों नहीं? मालिक हैं, बोल सकते हैं करो. करेक्ट? उनका हक है बोलने का. So he has a right and he is demanding surrender. So we should accept, take shelter of Krishna and accept the supreme will. Srila Prabhupada ki, Bhagavad Gita ki.
Hare